اسرائیلی فوج نے غزہ میں اب تک کی سب سے بڑی اسلحہ ساز فیکٹری پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اسلحہ فیکٹری وسطی غزہ کے البریج کیمپ میں زیر زمین تھی، جو کہ 30 میٹر گہرائی میں سرنگوں کے وسیع نیٹ ورک سے جڑی تھی۔ فیکٹری سے بڑی تعداد میں تیار میزائل برآمد ہوئے۔ جنوبی لبنان میں تازہ کارروائی میں حزب اللہ کے سینئر کمانڈر بسام کو فضائی حملے میں شہید کر دیا گیا۔ آرمی چیف عاصم منیر کا 2 روزہ بحرین کا دورہ۔ آرمی چیف نے سرکاری دورے میں بادشاہ حمد بن عیسی ال خلیفہ اور بحرینی افواج کے کمانڈر سے ملاقاتیں کی، جس میں 2 طرفہ فوجی اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بحرین کے فرماندر نے دونوں بردار ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے کردار ادا کرنے کے طرف میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ملٹری میڈل اور بحرین فرسٹ کلاس سے بھی نوازا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت اپنے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے تاحیات نااہلی ختم کر دی۔ عدالت نے 5 جنوری کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا۔ فیصلے کے مطابق سیاستدانوں کی نااہلی تاحیات نہیں ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ کے مطابق آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کا فیصلہ واپس لیا جاتا ہے۔ نواز شریف سے پاکستان میں برطانیہ کی ہائی کمشنر جین میرٹ نے ملاقات کی۔ ملاقات میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف، مریم نواز بھی موجود تھی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نواز شریف نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مضبوط تعلقات دونوں ممالک کے مفاد میں ہیں۔ برطانیہ میں مقیم پاکستانی دونوں ممالک کی دوستی کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ طے پا گیا۔ ذرائع کے مطابق آئی پی پی نے قوم 13 اور صوبائی اسمبلی کی 22 سیٹوں کا مطالبہ کیا، لیکن آئی پی پی کو قومی کی 7 اور صوبائی اسمبلی کی 11 سیٹیں دیے جانے کا امکان۔ جہانگیر ترین کو لودھیا کی بجائے NA 149 ملتان سے ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ بلوچستان کی نگراں حکومت نے عام انتخابات کے لیے صوبے کے انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنوں پر CCTV کیمرے نصب کرنے اور حساس علاقوں میں پولیس اور لیویز کی مدد کے لیے پاک فوج اور فرنٹیئر کورٹ کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے ہونے والے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ مردان خان ڈومکی نے کہا کہ بلوچستان میں پرامن، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ بیرون ملک سے آنے والے مزید 2 مسافروں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ ترجمان محکمہ سندھ کے مطابق بلوچستان کے کیچ رہائشی 26 سال کا مسافر اتوار کو ابوظہبی سے کراچی پہنچا تھا، جبکہ 27 سال کا اٹک کا رہائشی دوسرا مسافر جدہ سے کراچی آیا تھا۔ ترجمان محکمہ صحت سندھ نے کہا کہ دونوں مسافروں کو قرنطینہ کی ہدایت کے ساتھ گھروں کو روانہ کر دیا گیا۔ لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ آنے کے بعد کووڈ کی قسم کا معلوم ہو سکے گا۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کے ساتھ جاتے چودھری شافق حسین کا کہنا ہے کہ میری ذاتی خواہش ہے کہ پرویز الہی باہر آئیں اور الیکشن لڑیں۔ ایک بیان میں چودھری شافق حسین نے کہا کہ ہمیشہ یہی کہا کہ چودھری برادران کو اکٹھے چلنا چاہیے۔ ہم نے NA 62 اور 63 پر مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے انکار کیا تھا۔ الیکشن ٹریبیونل نے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے خلاف دوسری اپیل بھی مسترد کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونل نے سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے NA 242 سے کاغذات نامزد کی منظوری کے خلاف اپیل پر سماعت کی، جس میں درخواست گزار حسنین چوہان نے موقف اختیار کیا کہ شہباز شریف نے NA 242 کے کاغذات میں درست حلف نامہ نہیں لگایا۔
درخواست گزار نے کہا کہ شہباز شریف نے بیان حلفی میں کاروبار سے متعلق غلط بیان کی ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے شہباز اکبر، زلفی بخاری اور فراح گوگی کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد کے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں پی ٹی آئی رہنما شہزاد اکبر، زلفی بخاری اور فراح گوگی کے اثاثے اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم دے دیا۔ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 6 ملزمان کے اثاثے اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم دیا ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد کے طرف شدید دھند کی وجہ سے فلائٹ آپریشن آج بھی متاثر ہے، جس کے سبب 15 پروازیں منسوخ کر دی گئی۔ ایویشن ذرائع کے مطابق پی آئی اے کی ابوظہبی، پشاور، دبئی اور پشاور کی پرواز اسلام آباد لینڈنگ کرائی گئی، جبکہ نجی ایئر لائن کی شارجہ اسلام آباد اور مانچسٹر اسلام آباد پرواز منسوخ کر دی گئی۔ فضائی مسافروں کے لیے غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے قذافی اسٹیڈیم میں کار ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے آج ہی 8 سینٹر قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پولیس خدمت مرکز لبرٹی کا دورہ کیا۔ انہوں نے خدمت مرکز کے باہر موجود کار ڈرائیونگ ٹیسٹ دینے والے شہریوں سے ملاقات کی اور ٹیسٹ کی سہولت کے بارے میں دریافت کیا۔ رش کے خاتمے کے لیے مزید سینٹرز کا قیام فی الفور عمل میں لایا جائے گا۔ کراچی کی بینکنگ کورٹ نے جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں سابق صدر مملکت آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تاجپور سمیت دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ بینکنگ کورٹ کراچی میں جعلی اکاؤنٹ کیس کی سماعت ہوئی۔ عبدالغنی مجید اور دیگر ملزم عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ سابق صدر آصف علی زرداری اور فریال تاجپور پیش نہ ہوئے۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں آصف زرداری اور فریال سمیت دیگر افراد نامزد ہیں، جن پر 4 ارب روپے کی منی لانڈرنگ سمیت متعدد الزامات ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں باہمی پی ٹی آئی کی بہنوں کی عبوری ضمانت میں 10 فروری تک توسیع کر دی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں جناح ہاؤس حملہ کیس میں نامزد 121 ملزمان کی عبوری ضمانتوں پر سماعت ہوئی۔ آئی ٹی سی کے جج ارشد جاوید نے کیس پر سماعت کی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق رہنما تحریک انصاف اسد عمر کی 1 روزہ حاصلی معافی کی درخواست بھی منظور کر دی۔ امریکہ اور برطانیہ نے بنگلہ دیش میں متنازع الیکشن پر سوالات اٹھا دیے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ بنگلہ دیش کے انتخابات نہ شفاف اور نہ ہی غیر جانبدار تھے۔ امریکہ نے دیگر مبصرین کے ساتھ اپنے تاثرات شیئر کرتے ہوئے کہا کہ افسوس ہے کہ بنگلہ دیش کے انتخابات میں تمام جماعتوں نے حصہ نہیں لیا۔ اس کے علاوہ برطانیہ نے بھی کہا کہ بنگلہ دیش میں الیکشن آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے معیار پر پورا نہیں اترے۔ انتخابات کا بائیکاٹ کرنا جمہوری نہیں ہے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں شاہ لیاقت۔ ہیڈ لائنز اپنے جانی بلیٹن کا آغاز ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی فوج نے غزہ میں اب تک کی سب سے بڑی اسلحہ ساز فیکٹری پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اسلحہ فیکٹری
वस्ती गजा के अलबुरिश कैंप में जेर जमीन थी, जो कि 30 मीटर गहराई में सुरंगों के वसी नेटवर्क से जुड़ी थी। इस्राएली फौज ने दावा किया कि फैक्ट्री में 100 किलोमीटर फासले तक मार करने वाले मिसाइल तैयार किए जाते थे। फैक्ट्री से बड़ी तादाद में तैयार मिसाइल भी बरामद हुए हैं। इस्राएली फौज के मुताबिक सुरंगों के जरिए फैक्ट्री से तैयार असलहा गजा के तमाम हिस्सों तक पहुंचाया जाता था। फैक्ट्री से बड़ी तादाद में मार्टल शेल और गोला बारूद भी बरामद किए गए। इसके अलावा फैक्ट्री से ड्रोन, तैयार रॉकेट, रहनुमाई का निजाम और दीगर जंगी आलात भी मिले हैं। दूसरी जानब इस्राएली फौज ने अलबरीज कैंप के इलाके में हमास के कई अरकान को शहीद करने का भी दावा किया है। इधर इस्राएली फौज ने गजा के साथ लुबनान में भी हमले शुरू कर दिए। जुनूबी लबनान में ताजा कार्रवाई में हजबुल्लाह के सीनियर कमांडर वस्ताम अल-तवील को फिजाई हमले में शहीद कर दिया गया। वसाम अल-तवील हजबुल्लाह के मुजाहमती यूनिट के नायब सरबराह थे। इस्राएली फौज ने हजबुल्लाह कमांडर को जुनूबी लबनान के कस्बे में गाड़ी में सफर करने के दौरान निशाना बनाया। वाज़ेह रहे कि गजा में गुज़िश्ता 24 घंटों में इस्राएली फौज की बमबारी से मजीद 70 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक गजा में फलस्तीनी शहदा की तादाद 23,000 से तजावुज कर गई है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने बहरीन के 2 रोजा सरकारी दौरे में बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और बहरीनी अफवाज के कमांडर से मुलाकातें की हैं, जिसमें 2 तरफा फौजी और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा के मुताबिक पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने बहरीन के 2 रोजा सरकारी दौरे के दौरान बहरीनी हमाद बिन ईसा अल खलीफा, वली ओहदत शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान बिन हमाद, बहरीन डिफेंस फोर्सेस के कमांडर फील्ड मार्शल खलीफा बिन अहमद अल खलीफा और बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकातें की। इन मुलाकातों के दौरान 2 तरफा फौजी और सिक्योरिटी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बहरीनी क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बहरीन नेशनल गार्ड के 27वें योम तासीस की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जहां उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तकरीब में इंसदाद दहशतगर्दी के तरबीती मश्क से मुतालिक शानदार मुजाहिरे पेश किए गए। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड ने बहरीन नेशनल गार्ड को मिलिट्री और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में आला पेशावराना तरबियत फराहम करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। बहरीन के फरमानवर ने दोनों बिरादर मुमालिक के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात को फरोग देने में किरदार अदा करने के तराफ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मिलिट्री मेडल ऑफ बहरीन फर्स्ट क्लास से भी नवाजा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अपने फैसले को कलअदम करार देते हुए ताहयात नहली खत्म कर दी है। अदालत ने 5 जनवरी को महफूज किया गया फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक सियासतदानों की नहली ताहयात नहीं होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नहली का फैसला वापस लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सियासतदानों की नहली ताहयात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1-6 के तनासुब से फैसला सुनाया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने फैसले से इख्तलाफ किया और कहा कि 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात भी नहीं है। नाअहली अदालती फैसला मौजूद होने तक है। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल तक है। नाअहली की मुद्दत के कानून को जांचने की जरूरत है। फैसले के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली खत्म होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने मामले की समाअत की। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मसहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी 7 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा थे। इससे कबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान की तारीख देखें कि 62(1)(f) की नाअहली जैसी तरामीम कब लाई गई। आइन में इस किस्म की तरामीम अयूब खान के दौर में शुरू हुई और आगे चलती गई। पाकिस्तान की तारीख को फरामोश नहीं किया जा सकता। हमने नाअहली केस में पब्लिक नोटिस जारी किया, मगर कोई एक सियासी जमात फरीक नहीं बनी। पाकिस्तान के अवाम का किसी को ख्याल नहीं, मुल्क तबाह कर दे कुछ नहीं होता। कागजात नामजदगी में एक गलती ताहयात नहली कर देती है।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि महसूस नई जजियात दाखिल करने से क्या बाकी हुकूक लिए गए। हम पाकिस्तान की तारीख को भूल नहीं सकते। पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है। दौरान समाज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि कानून साजी के जरिए डिक्लेरेशन की मुद्दत 5 साल की गई है। वकील मखदूम अली खान ने मौकिफ अपनाया कि नहली की मुद्दत मुनासिब वक्त के लिए होनी चाहिए, ताहयात नहीं। अगर कोई कानून चैलेंज करे फिर अदालत देखेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पूरा पाकिस्तान 5 साल नहली मुद्दत के कानून से खुश है। किसी ने कानून चैलेंज ही नहीं किया। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि समीउल्लाह बलोच फैसले को खत्म करें क्योंकि बुनियादी हकूक से महरूम रखा गया। नाहली की मुद्दत के कानून को जांचने की जरूरत नहीं। 62(1)(f) की तशरीह अदालती डिक्लेरेशन के जरिए आइन को रीड ऑन करता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से पाकिस्तान में बरतानिया की हाई कमिश्नर जीन मैरेट ने मुलाकात की। मुलाकात में साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ, सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद थी। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक के मफाद में हैं। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक की दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात का फरोग वक्त की जरूरत है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सियासी जमातों से अपनी मुलाकातों के हवाले से आगाह किया। जीन मैरेट ने कहा कि 8 फरवरी को इज्तमाहियत के हामिल इंतखाबात का इनेकाद पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुख्तलिफ मुकदमात से बरियत पर मुस्लिम लीग नून के कायद को मुबारकबाद दी। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला तय पा गया। जराये के मुताबिक IPP ने कौमी की 13 और सूबाई असेंबली की 22 सीटों का मुतालबा किया था, लेकिन IPP को कौमी की 7 और सूबाई असेंबली की 11 सीटें दिए जाने का इम्कान है। जहांगीर तरीन को लोधरा की बजाय NA 149 मुल्तान से एडजस्ट किया जाएगा, जबकि अलीम खान को NA 117 और ओन चौधरी को NA 128 लाहौर में एडजस्ट किया जाएगा। नुमान लंगड़ियाल को साहिवाल, इंजीनियर गिल अस्कर को खुशाब, आमिर कयानी को इस्लामाबाद और गुलाम सरवर खान को पिंडी से एडजस्ट किया जाएगा। जराये का कहना है कि IPP की फिरदौस आशिक अवान, हमायूं अख्तर, राना नजीर, फैसलाबाद से फरो हबीब और साहिवाल से नरेश शकूर को एडजस्ट नहीं किया जाएगा। बलोचिस्तान की निगरान हुकूमत ने आम इंतखाबात के लिए सूबे के इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशनों पर CCTV कैमरे नस्ब करने और हसास इलाकों में पुलिस और लेविस की मदद के लिए पाक फौज और फ्रंटियर कोर की खदमात हासिल करने का फैसला किया है। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान अली मर्दान खान डूमकी की ज़ेर सदारत सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए होने वाले इजलास में ये फैसला किया गया। इजलास से खिताब में निगरान वज़ीर आला अली मर्दान खान डूमकी ने कहा कि बलोचिस्तान में पुरअमन, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी हैं। हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर बहाली अमन के लिए खुसूसी इकदाम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूबे में पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के पेशरफ्त का मुस्तकिल जायजा लिया जाएगा। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला जाहिद सलीम ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इंतखाबात के हवाले से बलोचिस्तान के 18 अजला को इंतहाई हसास करार दिया गया। आम इंतखाबात 2024 के लिए बलोचिस्तान में 5067 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे, जिनमें 2055 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 2180 हसास जबकि 832 नॉर्मल करार दिए जाएंगे। आज बलोचिस्तान ने इजलास में बताया कि सूबे में उम्मीदवारों, इंतहाबी मुहिम और इंतहाबी अमले की सिक्योरिटी के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई।
और अब आपको अपडेट करें कि बैरून मुल्क से आने वाले मजीद 2 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक बलोचिस्तान का रिहायशी 26 साल का मुसाफिर इतवार को अबूजहबी से कराची पहुंचा था, जबकि 27 साल का अटक का रिहायशी दूसरा मुसाफिर जद्दा से कराची आया था। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध का कहना है कि दोनों मुसाफिरों को करंतना की हिदायत के साथ घरों को रवाना कर दिया गया। लेबोरेटरी टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद कोविड की किस्म का मालूम हो सकेगा। पाकिस्तान में कोरोना के नए वेरिएंट के 4 केसेस सामने आ गए। वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी बैरून मुल्क से आने वाले 4 मुसाफिरों में कोरोना की तशखीस हुई थी। अमरीका, बरतानिया और भारत में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के केसेस सामने आए हैं और नए वेरिएंट से भारत में अमवात भी हुई हैं, जबकि अमेरिका में कोरोना के नए वेरिएंट से मुतासिर अफराद का अस्पतालों में दाखिला बढ़ गया है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद समेत ज्यादातर एयरपोर्ट्स पर बाहर से आने वालों की कोविड टेस्टिंग शुरू हो गई है। बैरून मुल्क से आने वाले 2% मुसाफिरों की लाजमी कोविड टेस्टिंग होगी। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शजाउत हुसैन के साथ साथ चौधरी शाफे हुसैन का कहना है कि मेरी जाती ख्वाहिश है कि परवेज इलाही बाहर आए और इलेक्शन लड़ें। एक बयान में चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि हमेशा यही कहा है कि चौधरी बिरादरान को इकट्ठे चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने NA 62 और 63 पर मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट से इनकार किया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का नाअहली का फैसला बरकरार रखते हुए चौधरी परवेज इलाही और उनकी अहलिया कैसरा इलाही को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिया था। तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही और उनकी अहलिया कैसरा इलाही ने कौमी असम्बली के हल्का 159 और पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 23 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का रिटर्निंग अफसर का फैसला चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के खिलाफ दूसरी अपील भी मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के NA 242 से कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत की, जिसमें दरख्वास्त गुजार हुसनैन चौहान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहबाज शरीफ ने NA 242 के कागजात में दुरुस्त हल्फनामा नहीं लगाया। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि शहबाज शरीफ ने बयान हल्फी में कारोबार से मुतालिक गलत बयानी की है। RO का फैसला कलअदम देकर शहबाज शरीफ के कागजात मुस्तरद किए जाएं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दरख्वास्त गुजार के दलाल सुनने के बाद उसकी अपील मुस्तरद कर दी, ताहम तहरीरी फैसला बाद में किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कराची के हल्का NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद की थी, जबकि इसी हल्के से MQM पाकिस्तान के मुस्तफा कमाल भी उम्मीदवार हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह गोगी के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 190 मिलियन पाउंड केस में PTI रहनुमा शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह गोगी के असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दिया है। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में 6 मुल्जिमान के असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया है। एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त करने का हुक्म दिया, जबकि अदालत ने इश्तिहारी करार देने के बाद तमाम मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कज़ाफी स्टेडियम में कार ड्राइविंग टेस्ट के लिए आज ही 8 सेंटर कायम करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी का दौरा किया। उन्होंने खिदमत मरकज के बाहर मौजूद कार ड्राइविंग टेस्ट देने वाले शहरियों से मुलाकात की और टेस्ट की सहूलत के बारे में दरियाफ्त किया। शहरियों ने कार ड्राइविंग टेस्ट में ताखिर के हवाले से शिकायत की, जिस पर वज़ीर आला ने फौरी नोटिस लेते हुए कहा कि खिदमत मरकज में कार ड्राइविंग टेस्ट की सहूलत के साथ कज़ाफी स्टेडियम में भी मजीद 8 सेंटर्स बनाए जाएं। रश के खात्मे के लिए मजीद सेंटर्स का कयाम फिलफौर अमल में लाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को इस संबंध में फौरी हिदायत दी।
मोहसिन नकवी ने शहरियों से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के अमल और वक्त के बारे में पूछा, जबकि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आज शहरियों के मसाइल सुने और उनके मौके पर ही हल के लिए अहकाम जारी किए। वजीर आला पंजाब के ड्राइविंग टेस्ट के लिए मजीद सेंटर्स के ऐलान को शहरियों ने सराहा और मोहसिन नकवी जिंदाबाद के नारे लगाए। कराची की बैंकिंग कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। बैंकिंग कोर्ट कराची में जाली अकाउंट केस की समाअत हुई। अब्दुल गनी मजीद और दीगर मुलजिम अदालत में पेश हुए, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर पेश ना हुई। वकील सफाई ने अदालत में मौकिफ अपनाया कि साबिक सदर और उनकी बहन को नोटिस नहीं मिले, जिस पर अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर को दोबारा नोटिस जारी कर दिए। कराची बैंकिंग कोर्ट की जानिब से जारी नोटिस में उन अफराद को 19 फरवरी को पेश होने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी गई। याद रहे कि गुज़िश्ता बरस अगस्त में जाली बैंक अकाउंट्स केस इस्लामाबाद से कराची मुंतकिल किया गया था। जाली बैंक अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर समेत दीगर अफराद नामजद हैं, जिन पर 4 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग समेत मुतादिद इल्जामात हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला केस में बानी पीटीआई की बहनों की अबूरी जमानत में 10 फरवरी तक तोसी कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस हमला केस में नामजद 121 मुलजिमान की अबूरी जमानतों पर समाअत हुई। एटीसी के जज अरशद जावेद ने केस पर समाअत की। अदालत ने बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान, उस्मा खान और शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी समेत दीगर के बुरी जमानतों में 10 फरवरी तक तोसी कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर की एक रोजा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली है। वाज़ेह रहे कि मुलजिमान के खिलाफ थाना सर्वर रोड में जिना हाउस पर हमले का मुकदमा दर्ज है। अमरीका और बरतानिया ने बांग्लादेश में मुतनाज़ इलेक्शन पर सवालात उठा दिए। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि बांग्लादेश के इंतखाबात ना शफाफ और ना ही गैर जानिबदार थे। अमरीका ने दीगर मुबस्सिरीन के साथ अपने तासुरात शेयर करते हुए कहा कि अफसोस है कि बांग्लादेश के इंतखाबात में तमाम जमातों ने हिस्सा नहीं लिया। इसके अलावा बरतानिया ने भी कहा कि बांग्लादेश में इलेक्शन आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के मयार पर पूरा नहीं उतरे। इंतखाबात का बायकॉट करना जमहूरी नहीं। वाज़ेह रहे कि शेख हुसैना वाजिद की पार्टी ने अपोजिशन के बायकॉट के बाद पार्लिमानी इंतखाबात में 3/4 नशिस्तें हासिल की हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसैना वाजिद जमात अवामी लीग ने इलेक्शन में 222 नशिस्तें हासिल की, जबकि इंतखाबात में किसी दूसरी सियासी जमात की बजाय आज़ाद उम्मीदवारों ने बड़े पैमाने पर कामयाबी समेटी और 63 नशिस्तें हासिल की। शेख हसीना वाजिद ने इंतखाबात पर अपोजिशन की तनकीद को मुस्तरद किया और फतेह का जश्न मनाते हुए कहा कि इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना ही थे। अगर कोई पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती तो इसका मतलब ये नहीं कि मुल्क में जमहूरियत नहीं है। जो तनकीद करना चाहते हैं करते रहें। वाज़ेह रहे कि 76 साल की शेख हसीना वाजिद 2009 से बांग्लादेश की वजीर आजम हैं, जबकि उन्होंने इलेक्शन का बायकॉट करने वाली जमातों को दहशतगर्द जमातें करार दिया है। और अब कुछ बात करते हैं मौसम से मुतालिक। तो आपको बताएं कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के तरफ शदीद धुंध की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन आज भी मुतासिर है, जिसके सबब 15 परवासें मनसूख कर दी गई। एविएशन जराये के मुताबिक PIA की अबू ज़बी पिशावर, दुबई और पिशावर की परवाज इस्लामाबाद लैंडिंग कराई गई, जबकि निजी एयरलाइंस की शारजा इस्लामाबाद और मैनचेस्टर इस्लामाबाद परवाज मनसूख कर दी गई। इस्लामाबाद रियाज के दरमियान निजी एयरलाइंस की परवाज इस्लामाबाद से कोयटा की परवाजें भी मनसूख कर दी गई। इसके अलावा लाहौर दुबई, मुल्तान दुबई, कराची कोयटा और कराची इस्लामाबाद की परवाजें भी मनसूख कर दी गई।
खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान से पहले भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कसीर तादाद गिरफ्तारी के डर से पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जाती रही। 8 जनवरी 2024 को जाने वाले 1016 अफगान शहरियों में 336 मर्द, 269 खवातीन और 411 बच्चे अपने मुल्क चले गए। 8 जनवरी 2024 तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,62,799 तक पहुंच चुकी है और वापसी का ये सिलसिला जारी सारी है। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 38 गाड़ियों में 62 खानदानों के अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। पंजाब फूड अथॉरिटी की गंज बख्श मंडी में बड़ी कार्रवाई। गुटके से बड़ी गाड़ी पकड़ी गई। तकरीबन 6,000 साशे गुटखा तल्फ कर लिया। फूड सेफ्टी टीमों ने डेप्यूटी डायरेक्टर की सरबराही में गंज मंडी में कार्रवाई करते हुए गुटके से बड़ी गाड़ी पकड़ ली। एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज और गुटके को मौका पर तल्फ कर दिया। गुटके की मालियत तकरीबन 3 लाख रुपए थी। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि गुटके की फरोख्त पंजाब भर में ममनू है। डीजी फूड अथॉरिटी का मजीद कहना था कि गुटखा इंसानी जान के लिए खतरनाक और जानलेवा है। शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन नंबर 1223 पर राब्ता कर सकते हैं। अब आपको अफसोसनाक खबर से अपडेट करें कि कोटरी में बीवी और 8 साल बच्चे को छुरी से गला काटकर कत्ल कर दिया गया। सिकंदराबाद कॉलोनी में एक घर से खानदान के 3 अफराद मियां बीवी और उनके मासूम बेटे की लाशें बरामद हुई। 35 साल अल्ताफ गौरी, उसकी 34 साल बेबी मीना और उनका 8 साल बच्चा आदिल घर में अपने बिस्तरों पर पड़े पाए गए। मोहल्लेदारों की इतला पर पुलिस मौका पर पहुंच गई और लाशों को ईदी एम्बुलेंस के जरिए कोटरी अस्पताल पहुंचाया गया। अब आपको अफसोसनाक खबर से अपडेट करें कि कोटरी में बीवी और 8 साल बच्चे को छुरी से गला काटकर कत्ल कर दिया गया। सिकंदराबाद कॉलोनी में एक घर से खानदान के 3 अफराद मियां बीवी और उनके मासूम बेटे की लाशें बरामद हुई। 35 साल अल्ताफ गौरी, उनकी 34 साल बीवी मीना और उनका 8 साल बच्चा आदिल घर में अपने बिस्तरों पर पड़े पाए गए। मोहल्लेदारों की इतला पर पुलिस मौका पर पहुंच गई और लाशों को ईदी एम्बुलेंस के जरिए कोटरी अस्पताल पहुंचाया गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक मामला जाती दुश्मनी और घरेलू झगड़ा लगता है। डीएसपी कोटरी का कहना है कि तफ्तीश जारी है। तफ्तीश के बाद ही असल हकायक मालूम होंगे। रिश्तेदारों के बयान के मुताबिक कत्ल के बाद मीना ने रिश्तेदारों को फोन किया और बताया कि मेरे शोहर को कत्ल कर दिया गया। डीएसपी कोटरी के मुताबिक लाशों के करीब से स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाला चाकू भी मिला है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही जहां पर ड्राई फ्रूट्स की दुकानों पर रश उमड़ आया, वहां पर मूंगफली के स्टॉलों पर भी रश देखने को मिला। इस हवाले से मजीद अहवाल जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उमैर अता से। जी उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही जहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की दुकानों के ऊपर रश देखने को मिला है, इस हवाले से मूंगफली के स्टॉल के ऊपर भी रश उमड़ आया है। इस हवाले से मैं एक ऐसे ठेले पे मौजूद हूँ जो कि नमक के अंदर मूंगफली को जो है वो फ्राई करके सेल कर रहा है। इस हवाले से हमारे साथ स्टॉल मालिक मौजूद है, उनसे जान लेते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बताइएगा। जी, सर्दी की वजह से हमारे स्टॉल पे बहुत रश बढ़ गया है। हम ताज़ा मूंगफली नमक में फ्राई करके ताज़ा बेच रहे हैं। तो ग्राहकों का कहना है कि ये हमें महंगी दे रहे हैं, हमें पीछे से महंगी मिलती है, इस वजह से हमें भी आगे महंगी बेचनी पड़ती है। जी जैसे कि आपने स्टॉल मालिक की बात सुनी, इनका कहना है कि हमें जो है वो पीछे डीलर से मूंगफली जो है वो महंगी मिलती है, इसी वजह से हमें जो है वो महंगाई की वजह से इसको महंगा। कसूर बाबा बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अद्वियात की शदीद किल्लत हो गई। दिल के मरीज भी अद्वियात बाजार से खरीदने पर मजबूर हो गए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मेहर अब्दुर्रहमान से, जो इस वक्त बाबा बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मौजूद हैं। जी मेहर, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी मैं इस वक्त बिल्कुल बाबा बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कसूर में मौजूद हूँ
اور اگر اس اسپتال کی بات کی جائے تو اس کے انتظامات کو درست کرنے کے لیے بار بار یہاں کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جو ہے ان کو تبدیل کیا گیا، مگر جو آج سے 5-6 ماہ قبل جن کو لگایا گیا ڈاکٹر فاروق MS قصور جن کو تعینات کیا گیا، وہ جاتے دفعہ بجائے اس کو بہتر کرنے کی تمام اسپتال کے انتظامات کو، ادویات کا تمام ہر طرف بربادی اتار کر یہاں سے ریٹائر ہو کر جا چکے ہیں۔ اور آج اگر ادویات کی بات کی جائے تو نہ تو یہاں پہ ICU میں ادویات مل رہی ہیں جو زندگی بچانے کے کام آتی ہیں، اسی طرح اگر عام اوریجنل آلبوس اسپتال کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی ایک جو ادویات ہیں ان کا انتہائی فقدان نظر آ رہا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت YDA کے ڈاکٹر فراز موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس اسپتال کو اب کیسے دیکھ رہے ہیں، ان ادویات کو کس طرح سے پورا کیا جائے گا۔ حکومت کو فوری طور پہ حکومت کو کوئی نوٹس لینا چاہیے یا کوئی MS صاحب اس میں کوئی بہتری لا سکتے ہیں جو نئے MS آئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ بلے شاہ ہاسپٹل جو ہے یہ 40 لاکھ کی آبادی کو سرو کرنے والا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے۔ انفارچونیٹلی سہولتوں کی، ادویات کی ہمیشہ سے قلت رہی ہے، اور بالخصوص ان 6 مہینوں کے اندر جتنے برے حالات ہوئے ہیں اور زیرو پہ چلی گئی ہیں چیزیں۔ ICU ہو گیا، CCU ہو گیا، یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ وہ مریض ہیں جو زندگی موت کے اندر ہوتے ہیں، اور ان کے لیے بھی بیسک ادویات جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ بجٹ MS صاحب جو پچھلے رہ کے گئے وہ کہتے رہے کہ بجٹ موجود نہیں ہے، ڈپارٹمنٹ کہتا رہا بجٹ موجود ہے، اور ابھی بھی یہ صورتحال ہے کہ نہ جنرل سٹور میں کوئی میڈیسن ہے، نہ ہماری انڈور فارمیسی میں میڈیسن ہے، نہ وارڈ میں پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ غریب مریض ہیں اور وہ اپنی جیبوں سے خرید کر لاتے ہیں اور پھر جا کے مریضوں کا علاج ہوتا ہے۔ تو حالات بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، اور فیسلٹیز کی شدید کمی ہے، مشینری خراب ہے، ادویات کی کمی ہے، اور کوشش کر رہے ہیں نئے MS صاحب آئے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو جائیں، تو امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی بہتری کی طرف صورتحال جائے۔ یہ پاکستان کا تمام نظام جو امید پہ قائم ہے، اور میں یہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب سے شہریان قصور کی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ اس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال جس کو نام انہوں نے بابا بلے شاہ اسپتال کا نام دیا گیا تھا، اس کی لاج رکھتے ہوئے یہاں پر فوری طور پر کوئی نہ کوئی ہنگامی بنیادوں پر یہاں پر کوٹ ادو میں مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر امیدوار صوبائی حلقہ 278 ملک احمد یار ہنجرا بھی 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں جیت کے لیے پرعزم ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ منتخب ہو کر حلقے کی عوام کی خدمت جاری رکھتے ہوئے یونیورسٹی کے قیام سمیت دیگر دیرینہ مسائل حل کروں گا۔ ہمارے نمائندے امیر حمزہ اس وقت ان کے ہمراہ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانیں گے۔ جی حمزہ اپڈیٹ کیجیے گا۔ آج بالکل عام انتخابات کا سہرا کس کے سر سجے گا یہ فیصلہ تو 8 فروری کو ہوگا، لیکن یہ بتاتا چلوں کہ کوٹ ادو میں جو ہے سیاسی نمائندوں کی جانب سے جو ہے بھرپور الیکشن کمپین کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر امیدوار PP 278 ملک احمد یار ہنجرا کی جانب سے بھی جو ہے حلقے میں ڈور ٹو ڈور کمپین کا سلسلہ جاری ہے۔ میرے ساتھ ملک صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر، نئے چہرے بھی جو ہے وہ الیکشن میں اب سامنے آ رہے ہیں، کس طرح کا مقابلہ دیکھ رہے ہیں 8 فروری کو، اور اس حوالے سے بتائیے گا منتخب ہو کے آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ یہاں پر ہر بندے کو، ہر شخص کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ الیکشن میں عوامی خدمت میں آئیں، اور آپ نے جیسے دیکھا ہے کہ اس وقت بہت سارے نئے چہرے میں دیکھ رہا ہوں جو الیکشن میں حصہ لیا ہوا ہے، الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو باقی ہماری تیاری جو ہے وہ الحمدللہ بہت اچھی جا رہی ہے۔ بہت سارے نئے گروپ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شہر میں مختلف دیہاتوں میں وہ شامل ہو رہے ہیں، اور یہ خوشائند بات ہے، اور یہ ایک اچھا سائن ہے ہمارے لیے، ہماری سیاست کے لیے۔ آنے والا لاہ عمل جو ہے وہ ذہن میں ہے پڑا، انشاءاللہ تعالیٰ کوٹ ادو کی عوام کا درینہ مسئلہ جو ہے وہ ایک یونیورسٹی کا ہے، جس کا چارٹر جو ہے نا وہ یونیورسٹی کا اپنا ہو، کوئی دوسری کیمپس، کسی یونیورسٹی کا کیمپس وغیرہ نہ ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میری جو مینیفیسٹو ہے یا میرا منشور ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے اوپر وہ کوٹ ادو کی عوام کے لیے ایک یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف کوٹ ادو کے نام سے، اور دوسرا ہاسپٹل جو ہے کوٹ ادو کی عوام کے لیے ایک 500 بیڈ کا انشاءاللہ تعالیٰ ہاسپٹل لانا ہے۔ باقی سیوریج کے مسائل ہیں ہمارے بہت زیادہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو سیوریج کے مسائل ہیں ان کو بھی حل کرنا ہے۔ باقی جو کام ہے ڈیولپمنٹ کے وہ تو ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کے ہو گئے یا دوسرے ہو گئے، وہ ہوتے رہتے ہیں۔ خصوصاً جو ہے یہ جو میں نے 3-4 آپ کو گنوائے ہیں ان پہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا فوکس رہے گا میرا۔ جی بالکل، ملک صاحب میرے ساتھ موجود تھے، ان کی جانب سے یہی کہنا ہے کہ آئندہ منتخب ہو کے جو ہے کوٹ ادو کے جو درینہ مسائل ہیں ان کو جو ہے فل فور جو ہے وہ حل کیا جائے گا۔ جی عام انتخابات 2024 کے لیے وہاڑی میں فوج کی تعیناتی، پاک فوج ضلع انتظامیہ پولیس کا اہم اجلاس
पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने का अज़्म। मजीद जानते हैं विहाड़ी से मियां आमिर कुरैशी की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह की ज़ेर सदारत आम इंतखाबात 2024 के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर कर्नल हसान, कर्नल आबद, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान और दीगर अफसरान मौजूद थे। इजलास में जिला भर में आम इंतखाबात के इनकाद के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने कहा कि आम इंतखाबात को पुरअमन, शफाफ और गैर जानबदार बनाने के लिए तमाम वसाइल पैरोकार लाए जाएंगे, जिसके लिए पोलिंग स्टेशन सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद ईसा खान ने इजलास में आम इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग दी और कहा कि अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाया जा रहा है। इजलास में जिला भर के हसास पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली गौर गुज़र किया गया। तमाम पोलिंग स्टेशन पर पाक आर्मी के जवान तैनात होंगे और हसास पोलिंग स्टेशन पर खसूसी सिक्योरिटी तैनात की जाएगी और मॉनिटरिंग सख्त इंतजाम के साथ की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने हमरा कर्नल हसान, कर्नल आबिद और डीपीओ विहाड़ी ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन और हसास पोलिंग स्टेशन का विजिट किया और सिक्योरिटी के सिलसिले में इंतजाम का जायजा लिया। कैमरामैन टीम के हमरा मियां आमिर कुरैशी, कोहिनूर टीवी विहाड़ी। चेयरमैन नॉर्थ जोन ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन कामरान अरशद ने कहा कि साल 2024 में टेक्सटाइल सेक्टर के एक्सपोर्ट में इजाफे का इम्कान है। विफाकी वजीर सनत और तिजारत गौहर एजाज और निगरान हुकूमत की मौसर पॉलिसी की वजह से मौसम सरमा में सनत का पहिया जाम होने से बच गया। इस वक्त कामरान अरशद हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अली फारूक, उनका क्या मजीद कहना है, अपडेट कीजिएगा। जी, मैं मौजूद हूँ चेयरमैन नॉर्थ जोन एप्टमा के कामरान अरशद के पास। उनसे पूछते हैं जो टेक्सटाइल सेक्टर का टारगेट है कि टाइम पे अचीव हो जाएगा और क्या सूरत हाल इस टाइम तवानाई की बनी हुई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कामरान साहब बताइए, जो टारगेट था ये जो एक्सपोर्ट्स का, वो आप पूरा कर सकेंगे? हमारी उम्मीद काफ़ी है। 2 साल पहले जो टेक्सटाइल की इज्तिमाई एक्सपोर्ट थी वो तकरीबन $19.5 बिलियन थी, रिकॉर्ड हाई $31.5 बिलियन से। फिर पिछले साल ये एक्सपोर्ट गिर के 31.5 की इज्तिमाई 27.5 पे आ गई, जिसमें टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 19.5 से गिर के 16.5 पे आई। उसमें ज़ाहिर है फिर बिजली भी महंगी, गैस भी महंगी, 22% इंटरेस्ट रेट, काइबोर, 18% GST, ये तो हमारे इंटरनल इश्यूज़ थे। फिर एक दुनिया में इन्फ्लेशन, महंगाई, सेम इश्यूज़ दूसरी जगह पे भी थे, महंगी एनर्जी, खाने पीने की अशिया, तो एक ग्लोबल डिमांड सप्रेशन थी ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन। लेकिन अब हमारा ख्याल है कि जैसे जैसे तेल और गैस की कीमतें, पेट्रोल डीजल की सारी दुनिया में नीचे आ चुकी हैं, तो वहाँ से लोगों को डिस्पोजेबल इनकम थोड़ी सी बेहतर होगी। इंटरेस्ट रेट भी उम्मीद है दुनिया में सन 2024 में नीचे आना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कोई 74 ममालिक दुनिया के इलेक्शन में जा रहे हैं 2024 में, तो उसमें मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स को स्टिमुलस, इकनॉमिक पैकेजेस, ये सारी चीज़ें करनी पड़नी हैं। लिहाजा हमें उम्मीद है कि जून टू दिसंबर एक्सपोर्ट्स में थोड़ी सी कमी देखी गई थी, लेकिन जनवरी टू जून 2024 फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर में एक्सपोर्ट्स पिकअप करेंगी इंशाल्लाह। टेक्सटाइल सेक्टर का की एक्सपोर्ट्स फ्यूचर में ये 2024 में क्या बेहतर हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं, क्या आप इस हवाले से कहेंगे? जी, मेरा ख्याल है कि एक्सपोर्ट्स बेहतर हो सकती हैं। जैसे कि आपने देखा है टर्की में शरह सूद 42.5% पे चली गई है और रियल इंटरेस्ट रेट वहाँ पे 48-49% है। बांग्लादेश में भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सीरियस, वहाँ पे भी EU के, US के कंसर्न्स हैं। लिहाजा पाकिस्तान को इस चीज़ का एडवांटेज मिल सकता है। बहुत शुक्रिया जी। इन्होंने कामरान अरशद ने बताया है कि जी ये साल 2024 जो है उसके पहले 6 माह पिछले जो फाइनेंशियल ईयर के वो ज़रा अच्छे नहीं थे, लेकिन ये जो अब जून तक है सूरत हाल कुछ एक्सपोर्ट की बेहतर होगी और पाकिस्तान में भी ओवरऑल एक्सपोर्ट बढ़ेगी। दूसरा उन्होंने कहा जी रेट्स एक ही होने चाहिए पूरे पंजाब के साथ, दीगर सूबों के साथ कंपैरिजन अगर किया जाए तो पंजाब में अभी भी रेट ऊंचे हैं और वो कम लाने चाहिए, कम सतह पे लाने चाहिए। दूसरा उन्होंने रिश्ता देने से इनकार क्यों किया? शाहदरा टाउन के इलाका में 22 साल टीचर पर तेजाब फेंकने वाले 2 मुलजिमान
एसएसपी सिटी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी के हुक्म पर सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिए गए। उमर फारूक और गुलाम मुस्तफा तेजाब गर्दी की वारदात करने के बाद फरार होने की कोशिश कर रहे थे। मजीद हकाइक के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये एक तरफा मोहब्बत कभी कामयाब नहीं हुई। ये शादरा टाउन का इलाका है जहां पर 21 साल लड़की आयशा पर तेजाब फेंकने का जो मामला सामने आया था। 2 मुल्जमान इसमें तेजाब फेंकने के बाद लाहौर एयर जो है वो लाहौर से बजरिया बस जो है वो यहाँ से रवाना हुए और सियालकोट पहुंच गए और वहां से इन्होंने दुबई जाना था ताकि पुलिस इनको ना पकड़ सके। जबकि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शादरा टाउन मोहम्मद मुनीर ने जो है वो अपनी टीम के हमरा इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि जेरे इलाज मुतासरा 21 साल आयशा की जो है वो एसपी सिटी ने इजाजत भी की है। एसपी सिटी ऑपरेशन की बात की जाए तो एसपी सिटी ऑपरेशन काजी अली रजा और एसपी इन्वेस्टिगेशन मुनज़्ज़ा करामत की मेयो अस्पताल आमद भी हुई है। 21 साल आयशा पर जो है वो रिश्ता के इनकार पर उसके रिश्तेदारों ने तेजाब फेंक दिया था, क्योंकि ये टीचर थी और इसके साथ जो है वो एक नौजवान शादी करना चाहता था। इनका रिश्तेदार ही था, इनका कजन था, जिन्होंने जो है वो इनकार किया। तो इसने फिर अपने दोस्त के साथ प्लान बनाया कि अगर ये मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती तो किसी की जिंदगी में भी जाने के काबिल ना रहेगी। तो उसके मुंह पर एफआईआर के मुताबिक जो है वो तेजाब से भरा हुआ जग इसके मुंह पर फेंका। लड़की के मुंह पर तेजाब फेंकते ही चीखों पुकार फैल गई और इसके अलावा जो है वो इलाका में कोहराम मच गया। अगर देखा जाए तो तेजाब गर्दी का वाकया काफी देर बाद ये पेश आया है, क्योंकि इससे पहले कई मरतबा तेजाब गर्दी के वाकये पेश आते रहे थे, लेकिन एसपी सिटी की जानिब से और डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी की जानिब से अस्पताल में मौजूद लड़की के बुरसा की हौसला अफजाई भी की गई है। जबकि एसपी ने डॉक्टरों से मुलाकात के दौरान मरीजा के कंडीशन के हवाले से भी दरियाफ्त किया। जबकि तेजाब फेंकने वाले दोनों मुल्जमान को जो है वो गिरफ्तार करके थाना शादरा टाउन में लाया गया है और ये शादरा टाउन का ही इलाका था जहां पर आयशा के मुंह पर जो है वो तेजाब फेंका गया। उसके बाद ये दोनों मुल्जमान जो है वो सियालकोट फरार हो गए थे और वहां से इन्होंने समरियाल एयरपोर्ट से दुबई के लिए रवाना होना था। जबकि पुलिस ने सफेद पारचात में वहां पर नाकाबंदी की, क्योंकि मुखबिर खास की जानिब से इतला मिल गई थी कि दोनों मुल्जमान आउट ऑफ कंट्री फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस पर जो है वो इजाज एएसआई बड़ी महारत रखते हैं, बड़े केस इन्होंने डील किए हैं, इस तरह के जो है वो रॉबरी के केस, इसके अलावा दीगर बड़े बड़े केस इजाज एएसआई ने सॉल्व किए हैं। तो उसी पर इजाज एएसआई को भी अपने मुखबिर खास की जानिब से इतला मिली थी। इन्होंने एयरपोर्ट पर जो है वो सफेद पारचात में रैकी की और बाकायदा जैसे ही नौजवान जहाज में चढ़ने के लिए वहां पर पहुंचे तो दोनों मुल्जमान को पुलिस की जानिब से धर लिया गया। जिस तरह से लड़के से जब मेरी बात हुई थी तो वो कहता था मैं आयशा से मोहब्बत करता हूं और शादी करना चाहता हूं, लेकिन जिस तरह से मैंने शुरू में बताया एक तरफा मोहब्बत कभी कामयाब नहीं होती, मोहब्बतें दोनों तरफ से हो तो कामयाब होती हैं। तो इसी पर नौजवान एक तरफा मोहब्बत कर बैठा था, लेकिन आयशा इसको पसंद नहीं करती थी। आयशा के घर में रिश्ता भी भिजवाया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि हर वालिदैन की कोशिश होती है कि हमारी बच्ची जो है किसी अच्छे घर में तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सदर आईपीपी अब्दुल अलीम खान से पीपी 236 बिहाड़ी से मोहम्मद अवैस खान हकवानी की मुलाकात हुई। अवैस खान हकवानी का अपने साथियों समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। सदर आईपीपी अब्दुल अलीम खान ने अवैस खाकवानी को पार्टी मफलर पहनाकर शमूलियत पर खैर मकदम किया। अवैस खान खाकवानी का जहांगीर खान तरीन और अब्दुल अलीम खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। अवैस खाकवानी का कहना था कि जनूबी पंजाब में आईपीपी की मजबूती के लिए दिन रात काम करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मंशूर बेहतरी और इनफरादियत में अपनी मिसाल आप है। जबकि आईपीपी के सदर अब्दुल अलीम खान का कहना था कि आईपीपी गरीब और पैसे हुए तबके को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात देना चाहती है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हर शहरी को अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल और कैंपेन इंचार्ज NA 127 जुल्फिकार अली बदर की जेर सदारत मीडिया कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के हवाले से मुशावरत की गई। इजलास में चौधरी मोहम्मद असलम गिल, डिजिटल मीडिया हेड सैयद अली कासिम गिलानी, अमजद हुसनैन एडवोकेट, सदर गिलगित बल्तिस्तान, फायजा अहमद मलिक, सैयद एहसन रिजवी, नायाब गोहर जान, जीशान शामी, डॉक्टर खालिद जावेद जान, आगा सैयद तकी शाह, फजल शाह, उस्मान अवान और बशारत अली भी मौजूद थे।
उम्मीदवार PP 169 अहमद सुलेमान बलोच की जानिब से तरासू कन्वेंशन का इनकाद। नायब अमीर जमात इस्लामी उम्मीदवार NA 128 लियाकत बलोच की शिरकत। लियाकत बलोच का कहना था कि लूटों और लुटेरों की सियासत की तबाहकारियां अवाम को भुगतना पड़ रही हैं। मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम, क्या तफसीलात हैं आपके पास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, उम्मीदवार PP 169 की जानिब से तराजू कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान उम्मीदवार NA 128 लियाकत बलोच की भी शिरकत हुई। अहमद सुलेमान बलोच उम्मीदवार सूबाई असम्बली की जानिब से अहल इलाका का तावन करने पर शुक्रिया अदा किया गया। सैयद मुस्तकीम अहमद जहांगीर एसार इश्तियाक गुजर की शिरकत। पर नायब और अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था लूटों और लुटेरों की सियासत की तबाहकारियां अवाम को भुगतना पड़ रही है। अब की बयानदार तराजू को वोट दे। मुल्क को लूटने वाले माहिरीन चांद बदलकर पार्टी बदलकर अवाम को नोचते हैं। तराजू वालों का बेताग मादी है। कौम साथ में मुश्किल दूर करेंगे और इंशाल्लाह इस इलाके के तमाम मसाइल को हल करेंगे। और अगर आप लोगों ने मौका दिया तो जमात इस्लामी की हुकूमत आ गई तो हर बच्चा स्कूल जाएगा। जी आसिम बदर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम के सिलसिले में CTO लाहौर अमारा अतहर ने लिबर्टी चौक में जमजम सिटी के ताउन से शहरियों में फ्री हेलमेट तकसीम किए। CTO लाहौर का कहना है कि हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम में मोहलिक हादिसात में कमी आई है, जिसकी वजह से अस्पतालों में रश भी कम हुआ है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम राजा से, जो इस वक्त CTO लाहौर अमारा अतहर के साथ मौजूद हैं। जी आसिम, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त हम CTO अमारा अतर के साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं हेलमेट दिए जा रहे हैं, शहरियों में हेलमेट तकसीम करने का मकसद क्या है, क्या कहती हैं जी? बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं लिबर्टी के अंदर, और यहाँ पे मेन मकसद यही था कि चलान आज हम नहीं कर रहे, आज हम तोहफा देना चाह रहे हैं ताकि लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते और जिनका हेलमेट्स टूट गए हैं, आपने देखा होगा हमने सबसे पूछा कि क्या वजह है कि उन्होंने हेलमेट नहीं पहने हुए, तो मुख्तलिफ उनके रीज़न्स थे। कुछ अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम बता रहे थे, चोरी का बता रहे थे। तो आज हमने इनको तकसीम किए हैं और उम्मीद ये है कि ये गिफ्ट जो हम इनको दिया है, हमने ये पहनेंगे, इस्तेमाल करेंगे और चलान से अपने आप को बचाएंगे। अच्छा मैडम, ये भी बताइएगा कि सिटी ट्रैफिक पुलिस के पास हेलमेट की कमी है, ये गिफ्ट इनको कब दिया जाएगा? सिटी ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के पास सरकारी हेलमेट नहीं है, इस पे क्या कहती हैं? हमारे पास जो है ऑलरेडी इसके ऊपर एक्सरसाइज शुरू है। आपने देखा होगा हमारा सरकारी वाइट कलर है, बड़ा खूबसूरत लगता है, और वाइट हेलमेट्स की जो परचेज़ है वो हमारी अंडर प्रोसेस है। और इंशाल्लाह जितने भी हमारे पेट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं जिनके पास मोटर बाइक्स हैं, वो अपना सरकारी, अभी तो वो अपना प्राइवेट भी पहन लेते हैं, कहीं कहीं आपने देखा होगा ब्लैक भी नज़र आ रहा होता है, लेकिन अब हम इंश्योर कर रहे हैं कि तमाम अपना सरकारी जो है हेलमेट वो पहने। तो ये हमारी जो परचेज है ये अंडर प्रोसेस है, इंशाल्लाह आप सबको देखेंगे वाइट हेलमेट पहने हुए। जी बिल्कुल, सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर।